Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah, I'd like to just say something about my previous time when I shared sometime back. I had shared about my weight loss experience and losing weight and becoming thin and all that. और इसके पहले जब मैंने शेयर किया था तब मेरे जो वज़न जो घट गई थी उसके साथ का मेरा जो अनुभव रहा उसके बारे में मैंने बताया था। And I'd just like to say that I'm sorry if I've hurt anyone by saying that a fat person is like a proud person, something like that. तो मुझे कुछ ऐसा याद आता है कि मैंने कुछ ऐसे कहा था कि जो मोटा है वो घमंडी व्यक्ति के समान है, ऐसा कुछ मुझे कहा था मैंने। ऐसा किसी को इस बात से चोट पहुंची या दुख हुआ है तो मुझे कृपा करके माफ़ करें। What I meant was spiritual pride is like spiritual fat. और मैं जो कहने की कोशिश ये कर रहा था तो कि आत्मिक रीति से जो घमंडी है वो आत्मिक मोटापा के समान है। I'd like to say that everything is by God's grace and His will. If I cannot do it, weight loss, whatever it is by God's grace and His will. We cannot do it on our own. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी हम करते हैं या होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी मर्जी से है। हम जो कुछ भी करते हैं, मान लीजिए फिर वो वज़न घटाने की भी बात क्यों ना हो, हमारे खुद की इच्छा से, खुद के सामर्थ्य से हम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और शक्ति से हम कर सकते हैं। But if we ask God and if we trust Him, in His time He'll hear our prayers. लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर अपने समय में सारे बातों को वो कर देता है। Okay, I was reading since a few weeks or something, I've been experiencing a sense of relief from my anxieties a lot. और कई चंद हफ्तों से मैं जो चिंता करने वाली जो मेरी मन थी उससे मुझे राहत मिली है और ये परमेश्वर के वजह से है। I read it here in let's read 1 Peter chapter 5. पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय and verse 5. और उसमें वचन 5। You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Verse 6. Therefore humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, casting all your anxiety on Him, because He cares for you. और पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 से लेकर 7। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों का अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। In this verse, we understand we have to humble ourselves before God's hand so that we can receive grace. और हम इन वचनों से ये समझ जाते हैं कि जैसे हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हम नम्र हो जाते हैं, तब हमें परमेश्वर से वो अनुग्रह मिलता है। But what does the later verse say? Casting all your anxiety on Him because He cares for you. लेकिन उसके बाद वाले वचन में ऐसा लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So this is linked to it. If the evidence that we humble ourselves is we cast our anxiety on God. तो हमारा जो हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसका सबूत ये है कि हमारी सारी चिंताओं को हम परमेश्वर पे डाल देते हैं। See, we can go further also. It says here, verse 8, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. But resist him firm in your faith, knowing that the same experience of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. और आगे 8वें और 9वें वचन में सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी शैतान है गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। So when we are bombarded by anxious thoughts and feelings and attitudes, it's a sign that devil is trying to become like a roaring lion in front of us, trying to make us anxious and worried and upset and feeling down.
और जैसे ही हमारे मन में चिंता वाली सारी सोच विचार आती है, चिंता वाली जो मनोवृत्ति आती है, हमको समझ लेना चाहिए कि ये शैतान का काम है। और उस समय में जब हमारे मन में चिंता की बातें घूम रही है, शैतान आसपास मंडरा रहा है इसी ताक में कि कैसे वो हमें फाड़ खाए। So remember at that time, resist him, stand firm and say, Lord, all this anxiety I give unto you. We can be specific about it. It says in Philippians also, right? Be anxious for nothing, but in everything with prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passes all understanding shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus. और यहाँ पे जैसे इस वचन में इधर लिखा है पत्रस में कि विश्वास में हमें दृढ़ होकर शैतान का सामना करना है, चिंता की सारी जो सोच विचार है उसे निकालना है। जैसे फिलिपियों में भी कहा है कि हमारी सारी प्रार्थना और निवेदन जो है धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिना कोई चिंता के हमें लगातार परमेश्वर को बताते रहना है। और शांति का परमेश्वर जो है, जो सारे समझ से परे है, ऐसा शांति से वो हमें भर देगा। What does it mean in simple words? और साधारण शब्दों में इसका मतलब क्या है? टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, सब प्रभु पर छोड़ने का। एवरीथिंग यू कास्ट इट ऑन द लॉर्ड। डोंट टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात को लेकर तुम चिंता मत करो। इट्स एज सिंपल एज इट कैन बी। और ये इतना ही वो साधारण है। Just trust in him and he will do the impossible in your life. और परमेश्वर पे भरोसा रखो, जो बातें तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर तुम्हारे लिए मुमकिन कर देता है। What is it that gets us anxious? Our own sin sometimes our circumstances, sometimes our financial situation, our health, our relationships. We get so anxious and worried and we wonder why we don't have the joy of the Lord in our hearts. और कई बार हमारे जीवन में ये चिंता की सोच विचार क्यों आती है? हमारे नौकरी को लेकर, हमारे खुद के जीवन को लेकर, कितने सारे अन्य बातों से हम परेशान होकर हमारे जीवन में चिंता की सोच विचार मंडराती है और इसके वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर का जो आनंद है वो नहीं रहता है। So remember, when you humble yourself, what do? You need to just cast your anxiety on the Lord. Say, Lord, I surrender this to you. I surrender this situation to you. Help me to understand your ways. और इसलिए ये याद रखो कि जब हम अपने आप को नम्र कहते हैं तो जरूरी ये इसका प्रमाण ये होता है कि हमारी सारी जो चिंता है, सारी जो बोझ है, उसे हम परमेश्वर पे डाल देते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, ये हालात है, ये परेशानी है, ये आर्थिक परिस्थिति है, ये बीमारी है, फलाना फलाना इतनी सारी बातें हैं, इसमें मैं कैसे झेलूं, इसको झेलने के लिए तू मुझे मदद कर। So we finally conclude with verse 10. और आखिर में 10वें वचन से हम इसको समाप्त करते हैं। After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself perfect, confirm, strengthen and establish you. To him be dominion forever and ever. Amen. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। So what does it mean? Every trial has an end. There's an end to every trial, every problem you're facing, and God has a solution for every problem. Everything God has a solution for. और इसका मतलब क्या है कि आप जो कोई भी परेशानी से गुजर रहे हैं, निश्चय उसका अंत भी है। जो भी तकलीफ से हम जा रहे हैं, उसका एक दिन अंत जरूर होगा। और जो भी परेशानी से जा रहे हैं, उस पर जयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है और वो हमें ले जाता है। What does it mean to pray without ceasing? और बिना रुके लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहने का मतलब क्या है? It is just to keep our conscience clear with God and just to be in fellowship with Him all the time, because He is always with you and He is in you, the Holy Spirit. और इसका मतलब ये है कि लगातार परमेश्वर के साथ उस संगति में बने रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, साथ साथ हमारे भीतर भी वो वास करता है। Anytime you need anything, you need, just call on Him, trust Him. Lord, this is my need, help me. और जब कभी भी आपको कोई समस्या है, जब कभी भी आपकी कोई भी जरूरत है, आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से कहें, हे प्रभु तू मेरी मदद कर। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।